tan A minus B equals to tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. ये जो 6 formulas हैं important formulas students, इसके ऊपर के कुछ रिजल्ट्स भी हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं. That is cot A plus B into cot A minus B equals to cos square B minus sin square A upon sin square A minus sin square B. Cot A plus B equals to cot A cot B minus 1 upon cot B plus cot A. Cot A minus B equals to cot A cot B plus 1 upon cot B minus cot A. Sin A plus B equals to sin A minus B equals to sin square A minus sin square B. That is cos square B minus cos square A. Cos A plus B into cos A minus B equals to cos square A minus sin square B. That is equals to cos square B minus sin square A. Sin 15 degree equals to root 3 minus 1 upon 2 root 2. Cos 15 degree equals to root 3 plus 1 upon 4 root 2. And 15 degree equals to cos 75 equals. That is 2 minus root 3. Cot 15 degree equals to tan 75 degree equals to 2 plus root 3. Sin 18 degree equals to cos 72 equals to root 5 minus 1 by 4. Cos 36 degree equals to sin 54 degree equals to 5 plus 1 by 4. Cos 18 degree equals to sin 70 equals to under root 10 plus 2 root 5 whole divided by 4. Sin 36 degree equals to cos 54 degree equals to under root 10 minus 2 root 5 upon 4. Sin 22 and half degree equals to under root 2 minus root 2 by 2. Cos 22 and half degree equals to root 2 plus under root 2 plus root 2 by 2. Tan 22 and half degree equals to root 2 minus 1. Cot 22 and half degree equals to root 2 plus 1. ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ट्रिग्नोमेट्री के जो स्टूडेंट्स, ये जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं, या इसको रिमेंबर करना है आपको. आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. Now we discuss about the trigonometric ratios of allied angles. अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल. टू एंगल्स आर सेड टू अलाइड एंगल्स. किन दोनों एंगल को हम अलाइड एंगल कहते हैं देखेंगे स्टूडेंट. पहले टू एंगल्स are said to be allied angles if the sum or difference of their measures is either 0 or an integral multiple of pi by 2. Sum or difference of two angles is either 0 or an integral multiple of pi by 2. अगर दो एंगल की एडिशन या सब्ट्रैक्शन एक तो 0 आती है, नहीं तो 90 इंटीग्रल मल्टीपल मींस प्लस और माइनस
90 डिग्री के मल्टीपल में आनी चाहिए। 90, 180, 270, 360, 450, 540, 720. That two angles are called as allied angles. इन दो एंगल को हम कहते हैं allied angles. तो allied angles कैसे होते हैं देखो स्टूडेंट, sin pi by 2 प्लस और माइनस cos pi by 2 प्लस और माइनस sin pi प्लस और माइनस cos pi प्लस और माइनस। इन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। Sum or difference of two angles is either 0 or an integral multiple of pi by 2. These angles are sum or difference of two angles is either 0 or an integral multiple of pi by 2. तो स्टूडेंट इन अलाइड एंगल कौन से हैं? sin pi by 2 प्लस और माइनस थीटा, cos pi by 2 प्लस और माइनस थीटा, sin pi प्लस और माइनस थीटा, cos pi प्लस और माइनस थीटा। इन एंगल्स को हम अलाइड एंगल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो उसमें से पहला रिजल्ट क्या है देखो, sin pi by 2 माइनस थीटा, ये आता है cos थीटा। नंबर 2 cos pi by 2 माइनस थीटा, ये आता है sin थीटा। नंबर 3 tan pi by 2 माइनस थीटा, ये है cot थीटा। अभी cot pi by 2 माइनस थीटा, ये आता है tan थीटा। नेक्स्ट है sec pi by 2 माइनस थीटा, ये आता है cosec थीटा। cosec pi by 2 माइनस थीटा, ये होता है sec थीटा। ये अलाइड एंगल्स के रिजल्ट्स हैं। ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं? sin a माइनस b, cos a माइनस b। इंटीग्रल मल्टीपल मींस इंटीग्रल मल्टीपल्स का मीनिंग क्या होता है? 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 9 का टेबल, 9 का टेबल लिखने का और आगे 0 दिखने का। 90 का टेबल, that is 450 डिग्री, that is 540 डिग्री, 630, 720, 810, 900। ये हो गया मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। These are the multiples of 90 डिग्री। 90 को 1 से मल्टीप्लाई किया 90 आ गया, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 180, 3 से मल्टीप्लाई किया 270, 4 से मल्टीप्लाई किया 360, 5 से मल्टीप्लाई किया 450, 6 से मल्टीप्लाई किया 540, 7 से मल्टीप्लाई किया 630, 8 से मल्टीप्लाई किया 720, 9 से मल्टीप्लाई किया 810 और 10 से मल्टीप्लाई किया 900। These are the multiples. But integral multiples means minus 90, minus 180, minus 270, 360, minus 450, minus 540। ये ऊपर के है, ये पहले दो लाइंस
ये है मल्टीपल ऑफ 90 और ये दोनों मिला के होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मींस इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 6 plus or minus 7 plus or minus 8 plus or minus 9 plus or minus 10. These are the integral multiple. Integer is 0 1 2 3 4 up to 10, minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 up to minus 10. These are known as set of integers. इसको क्या कहते हैं हम? Set of integers. और these are the integers. जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, इसको हम कहते हैं इंटीजर। और इंटीग्रल मल्टीपल मींस इसको मल्टीप्लाई करके आने का नंबर। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 मींस 90 से इन इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आने वाले नंबर्स। मींस पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को मिलाकर कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल्स। आई बात सबके समझ में? got it? What is my integral multiples? क्लियर हो गया इंटीग्रल मल्टीपल के बारे में सबका डाउट? कंसेप्ट क्लियर हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल मींस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। मल्टीपल मींस मल्टीप्लाई करके आने की, मल्टीपल मींस मल्टीप्लिकेशन करके आने वाले नंबर्स। इंटीग्रल मल्टीपल मींस पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके आने वाले नंबर्स। प्रतीक, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका। इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3, तो नंबर कौन से आएंगे? यस, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 मींस प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 6 प्लस और माइनस 9 प्लस और माइनस 12 प्लस और माइनस 15। प्लस भी चलेगा या माइनस भी चलेगा। दैट आर द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3। वैसे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 मींस प्लस 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 इस प्लस 270 माइनस 270। इनमें से कोई भी आप नंबर ले लो, इन नंबर इसमें से कोई भी आप एक नंबर चूज करो, उस नंबर को आप कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। इन नंबर्स को हम कहेंगे इंटीग्रल मल्टीपल। इन नंबर्स को हम कहते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रल मल्टीपल। तो देखो स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। नंबर 1 है sin pi by 2 minus theta cos pi by 2 minus theta sin theta।
tan pi by 2 minus theta, that is cot theta. सेकंड है sin pi by 2 plus theta, cos theta. Cos pi by 2 plus theta minus sin theta. Tan pi by 2 plus theta minus cot theta. Next, sin pi minus theta, sin theta. Cos pi minus theta माइनस cos. ये पहले हम समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक के यूज करके आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. tan pi minus theta minus tan theta. नेक्स्ट है sin pi plus theta sin pi plus theta tan theta. Sin 3 pi by 2 minus theta minus cos. Cos 3 pi by 2 minus theta minus sin theta. Tan 3 pi by 2 minus theta cot theta. Cos 3 pi by 2 plus theta is sin theta. Tan 3 pi by 2 plus theta is minus cot theta. Sin 2 pi minus theta that is minus sin theta. Cos 2 pi minus theta is cos theta. Tan 2 pi minus theta
sin 2 पाई प्लस थीटा sin थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स इस तरह से है ये sin पाई बाय माइनस cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा, पाई 2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। tan अभी आप देख रहे होंगे ये पाई बाय 2 जहां पे आता है वहां पे रेशियो चेंज होता है। sin पाई बाय 2 माइनस थीटा, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा। जहां पे पाई बाय 2 है then sin is changes to cos, cos is changes to sin, tan is changes to cot। जहां पे पाई है देखो ये पहले फर्स्ट और सेकंड में चेंज हो रहा है, sin पाई बाय 2 माइनस थीटा cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा sin थीटा, means cos is changes to sin, sin is changes to cos, tan पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा, tan is changes to cot। then second में sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा, sin is changes to cos, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos is changes to minus sin, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, tan is changes to cot। पहले आप रेशियो का समझ ले, मैं साइन का नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं। पहली बात यह है कि यू रिमेंबर sin it changes to cos it changes to minus sin, tan it changes to minus cot। यहाँ पे पाई बाय 2 में रेशियो चेंज होता है और पाई में रेशियो एज इट इज रहता है। देखो sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, sin पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos, tan पाई प्लस थीटा माइनस प्लस tan थीटा। ये 3 पाई बाय 2, 3 पाई sin 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस sin थीटा, tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा cot थीटा। जहां पे पाई बाय 2 है वहां पे रेशियो चेंज हो रहा है, जहां पे सिर्फ पाई है वहां पे रेशियो एज इट इज रहता है स्टूडेंट्स। जिस चीज में ये पाई इंटीग्रल है, इंटीग्रल मींस 1 2 3 इंटीजर्स में है, पाई का कोएफिशिएंट इंटीजर है वहां पे रेशियो एज इट इज होता है। जहां पे पाई का कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल होता है 3/2, 1/2, 5/2, 7/2, उस केस में रेशियो चेंज होता है। ये देखो 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 का cos थीटा आता है। ये प्लस कब आएगा माइनस कब आएगा ये मैं नेक्स्ट स्टेप में बताने वाला हूं। मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि sin is changes to cos when pi the coefficient of pi is fractional,
फ्रैक्शनल मीन्स 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, इस केस में वो चेंज होता है। अगर पाई का कोएफिशिएंट इंटीजर है, इंटीजर मीन्स +1 है, -1 है, +2 है, -2 है, +3 है, -3 है, then tan as it is, sin as it is, cos as it is। नेक्स्ट पेज में देखो, ये sin 3π/2 + थीटा माइनस cos माइनस sin थीटा, cos 2π - थीटा cos थीटा, tan 2π - थीटा माइनस tan थीटा। जहाँ पे पाई का जो कोएफिशिएंट है वो इंटीजर है, मीन्स +π -π +2 -2 है, तो रेशियो एज इट इज रहता है। जिस केस में पाई का कोएफिशिएंट फ्रैक्शनल है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, उस केस में tan इज चेंजेस टू cot, sin इज चेंजेस टू cos, cos इज चेंजेस टू sin। In this way, this is about the trigonometric ratios of allied angles. This is about the trigonometric ratios of allied angles. अभी साइन कन्वेंशन कैसे होता है देखो, साइन कन्वेंशन प्लस आता है क्या माइनस साइन आता है, ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। ये एस टी सी, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये साइन, ये जो अलाइड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है स्टूडेंट, π/2 + थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 + थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 + थीटा।